the new topic today. As you all must have bought the textbook. सबने buy किया textbook? All of you buy your 11th standard textbook? Yes? Now, open your 11th standard textbook if possible. Open your 11th standard textbook if you are having with you all. On your book. If you want, I can also share. You can on the topic human nutrition. On the topic human nutrition. Manav, am I visible to you because you are saying that ma'am video is not enabled? Manav, can you all see me beta? Yes or no? Yes, okay. So all of you can see the PPT also. All of you can see the PPT also. Yes? Now we will be starting with a very interesting topic, that is the human nutrition. Today, as I will be teaching only the basic part of this particular lesson. Okay? Now, human nutrition. Can anybody tell me what is the meaning of nutrition? Nutrition का मतलब क्या होता है बेटा? What is the meaning of nutrition? Yes, try. The food that give us everything we required in our body is nutrition. Shabash, very good beta. Well said. Okay, so the things which provide energy to our body is called as a nutrition. Okay, so tell me what are the nutrients? Which are the nutrients which we eat which provide us energy? Carbohydrate, fats, proteins, fats, lipids. Very good beta. Yes, very good Sneha. They are the carbohydrates, fats, proteins. Yes, these are the nutrients which we take in our day-to-day life. Yes, so we will be just going to the next slide. Give me a second. So there are two types of nutrients. All of you will note down in your notebook also. I will check the notebook. All of you will be noting down in your notebook also. Write down the heading as nutrients. Heading as nutrients. So there are basically two types of nutrients, as the micronutrients and the macronutrients. Micronutrients and the macronutrients. So please note down in your notebook बच्चा लोग. मैक्रो एंड माइक्रो. ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या होता है? जो थोड़े क्वांटिटी में हमारे बॉडी को जरूरत है. और मैक्रो का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत है हमारे बॉडी को. तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं थ्री थिंग्स: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन. सो नोट डाउन, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं. मैक्रो इंक्लूड्स थ्री थिंग्स: carbohydrates, fats and protein. एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब है जो बॉडी को बहुत थोड़ी क्वांटिटी में जरूरत है. तो दे इंक्लूड्स विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड टू अवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. अंडरस्टूड? ठीक है. अच्छा, अब एनर्जी देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? अब देखो, हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम है. We are having different types of systems in our body. ठीक है? They are digestive system, circulatory system, है ना? Digestive system है, circulatory system है, respiratory system है. तो मैं बेसिकली इन तीन सिस्टम के बारे में ही आपको बताना चाहूंगी. जब आप फूड को खाते हो तो क्या होता है? ये फूड आपके बॉडी में डाइजेस्ट होता है. अब डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? जो भी बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपने खाए हैं उसका ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपल फॉर्म. अब ये जो सिंपल फॉर्म है वो ब्लड के थ्रू हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में घूमेगा और फिर हर एक सेल उसको यूटिलाइज करेगा. कैसे यूटिलाइज करेगा? जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो.
तो जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन के अंदर जब हम इंस्पिरेशन करें विच इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, तो उस दौरान क्या हो रहा है कि हम जब ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, फूड हमने सिंपल फॉर्म में कर लिया है, हाँ ऑक्सीजन मिल गया, उससे क्या जनरेट हो रहा है, एटीपी जनरेट होता है. How much ATP is generated by one molecule of glucose? It is about 38 ATPs which are being generated by breaking down of one glucose molecule. Understood all of you? And these ATPs are very important for our all metabolic process. अब मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, जो भी आप कर रहे हो, अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने हाथ को हिला पा रही हूँ, यस मेरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, मेरे सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है. तो ये जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर एज वेल एज बाहर, वॉलेंट्री एज वेल एज इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है बायो में, वॉलेंट्री का मतलब है जो हमारे ओन कंट्रोल पे है. जैसे मुझे हाथ ऊपर करना है मैं कर सकती हूँ, नीचे करना है कर सकती हूँ, तो दैट इज वॉलेंट्री कंट्रोल. पर कुछ चीजें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि मेरा हार्ट बीट, यस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यस तो ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स. सारे चीजों को किस चीज की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है. और ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, एनर्जी दो चीजों से मिलती है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. तो ग्लूकोज के लिए हमें खाना खाना पड़ता है और ऑक्सीजन के लिए हमें ब्रीदिंग करना पड़ता है. ठीक है, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? इतना सब ये बेसिक चीजें समझ में आ गई सबको? यस मैम. तो आप मुझे बताओगे कि मैम सिर्फ ग्लूकोज से अगर हमें एटीपी मिलती है तो हमें प्रोटीन क्यों खाना चाहिए? क्योंकि प्रोटीन से तो एज सच इतनी एनर्जी नहीं मिलती है जितना कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से मिलती है. कार्बोहाइड्रेट और फैट से बहुत ज्यादा एनर्जी गेन होता है. फिर प्रोटीन क्यों खाना चाहिए? तो प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी. अब ये बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या? ठीक है, देखो जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे या कोई भी सिस्टम पढ़ोगे, अभी आप 11th और 12th में ना बेटा ह्यूमन बॉडी डिटेल में पढ़ने वाले हो, तो उस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि हाउ द एंजाइम्स वर्क. डू यू ऑल नो अबाउट एंजाइम्स? पता है सबको एंजाइम्स क्या होते हैं? यस मैम. किसको पता Yes, है ma'am. एंजाइम्स के बारे में? एनीवन? आई कैन गेट यू बेटा, प्लीज जोर से बोलो जरा. Anybody know what are enzymes? Yash Kulkarni. Yash Kulkarni, can you on your mic and tell me beta? Who told you this chapter is omitted? No one. This chapter is not omitted. Some part of this chapter is omitted, not the whole chapter. ठीक है बेटा? Yes, yes. Tell me. It helps us to digest the food. Okay, it helps us to digest the food. But what exactly are the enzymes, beta? What exactly are the enzymes? Okay, I will tell you. Enzyme is a catalyst type of substance which speed up the digestion any property. Shabash, very good, very good, very correctly answered, very correctly answered. Yes. So enzymes are basically, they are the biocatalyst. So please note down, what are enzymes? They are the biocatalyst. बायो का मतलब है जो लिविंग बॉडी में रह रहा है, हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, मीन्स हम सब के अंदर है, लायन में, कैट में है, डॉग में, प्लांट्स में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर है, इसलिए बायो वर्ड हम यूज कर रहे हैं. कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? जब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो कैटलिस्ट आप डिटेल में पढ़ोगे, तो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो स्पीड अप करता है रिएक्शन को. एनीथिंग विच इज स्पीडिंग अप द रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए कैटलिस्ट. ठीक है. सो आपने कभी सोचा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी सुबह कुछ नाश्ता किया, ठीक है, लेटर से अभी आपने दोपहर को खाना खाया, यू हैव इटन योर फुल मील, हाँ पूरा खाना खाया आपने, राइस दाल चपाती एंड ऑल. फिर आपको रात को भूख लग जाती है, लगती है कि नहीं लगती है? किसी किसी को तो शाम को ही भूख लग जाती है जल्दी से. अगर यही खाने को, यही थाली को, इसी प्लेट को अगर आपने ऐसे बाहर रख दिया तो क्या ये डिटोरिएट हो जाएगा रात तक? Will it deteriorate till night? Yes or no?
ये खराब हो जाएगा रात तक, हाँ या Yes. नहीं? खराब हो जाएगा बेटा मानव। आपने ये राइस दाल सब कुछ रखा तो क्या वो अपने पूरा सिंपल फॉर्म में बदल जाएगा अपने आप रात को? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो किसका माइक ऑन है बेटा? आर्यन, आर्यन, यस टेल मी। ये जो खाना आपने राइस दाल वगैरह जो खाया है वो आपने खाया तो आपका डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट हो गया मतलब कि वो सिंपल फॉर्म में बदल गया। इसी खाने को अगर आप बॉडी के बाहर रखोगे तो क्या वो सिंपल फॉर्म में बदल जाएगा शाम तक, हाँ या नहीं? नो मैम। No, ma'am. बैक्टीरिया का एक्शन होके, बैक्टीरिया का एक्शन होगा, उसको पूरी तरह से No. कम होने के लिए कम से कम 15 दिन का टाइम लगेगा। कम से कम 15 दिन के अंदर वो जो खाना है वो पूरी तरह से सिंपल फॉर्म में हो जाएगा बिकॉज ऑफ सम बैक्टीरिया और बिकॉज ऑफ सम फंगस, है कि नहीं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. तो इसी के लिए ये एंजाइम हेल्पफुल है। आपने सुबह नाश्ता किया, आपको दोपहर को भूख लग गई, दोपहर को खाया, शाम को स्नैक्स के लिए भूख लग गई, शाम को खाया, रात को भूख लग गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? बिकॉज द एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन योर बॉडी आर वर्किंग वेरी एक्टिवली, बहुत ही फटाफट काम कर रहे हैं, ठीक है? एंजाइम्स आर वर्किंग वेरी एक्टिवली, दे आर स्पीडिंग अप द रिएक्शन। जो भी आपने कॉम्प्लेक्स चीजें खाई है उसको सिंपल फॉर्म में फटाक से बदल दे रहा है। इसलिए सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हमें लंच चाहिए, फिर स्नैक्स चाहिए, फिर डिनर चाहिए, अंडरस्टूड? So they are the catalyst. They are speeding up the reaction without itself undergoing the reaction. So enzymes plays a very important role in our body. अगर एंजाइम्स नहीं होते, भले ही डाइजेस्टिव सिस्टम ही क्यों ना होता हमारे पास, भले हमारे पास स्टमक क्यों ना होता, इंटेस्टाइन क्यों ना होता, पर अगर एंजाइम नहीं होते तो यही फूड खाया हुआ हमें डाइजेस्ट होने के लिए कम से कम 10 दिन 15 दिन लग जाते। समझ में आया? तो मैंने आपको इतना एंजाइम्स के बारे में क्यों बताना चाहा है? बिकॉज एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, अंडरस्टूड? इसीलिए प्रोटीन का भी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो अगर प्रोटीन वाली चीजें नहीं खाओगे तो एंजाइम्स नहीं बनेंगे, और एंजाइम्स नहीं बनेंगे तो ब्रेकडाउन नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा तो एटीपी नहीं बनेगा, और एटीपी नहीं बनेगा तो कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। तो you can understand that each and everything they are been correlated to one another. ठीक है, समझ में आ गया सबको? Everyone has been done with the main concept of this particular thing which is happening in Yes, our body. ma'am. Okay, so macromolecules are carbohydrates, proteins and fats, and micromolecules, macronutrients which are required for our body in a very small quantity, they are the vitamins and the minerals. Okay, now carbohydrate very important, ठीक है? सो प्लीज नोट डाउन, ये जो भी चीजें मैं बता रही हूँ ये आपको हर एक लेसन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर गोइंग टू लर्न रेस्पिरेशन लेसन इन 11th स्टैंडर्ड, यू आर गोइंग टू लर्न फोटोसिंथेसिस इन 11th स्टैंडर्ड। इन सारे लेसनों के लिए भी ये सब चीजें, बेसिक चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। सो राइट डाउन, सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। राइट डाउन। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स है, और उसका सिंपल फॉर्म क्या है? ग्लूकोज है। तो आप हेडिंग डालो कॉम्प्लेक्स, सिंपल। कॉम्प्लेक्स में नंबर 1 डालो कार्बोहाइड्रेट, और उसका सिंपल फॉर्म उसके सामने लिखो ग्लूकोज। Ma'am, pardon. Write down to make 2 columns बेटा, make 2 columns. One side write down complex, दूसरे साइड लिखो सिंपल। जहां पे आपने कॉम्प्लेक्स लिखा है उसके नीचे नंबर 1, फर्स्ट 1 लिखो कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म क्या होता है? ग्लूकोज। अब समझा? Yes, ma'am. अब लिखो प्रोटीन। प्रोटीन का सिंपल फॉर्म क्या है? अमाइनो एसिड।
नंबर 2 लिखो प्रोटीन. प्रोटीन का सिंपल फॉर्म क्या है? अमाइनो एसिड. प्रोटीन का सिंपल फॉर्म इज अमाइनो एसिड. फिर लिखो फैट. फैट को हम लिपिड भी कहते हैं. लिपिड. यस. उसका सिंपल फॉर्म क्या है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. तो ये सारी चीजों को आप याद रखो बेटा, बिकॉज दिस इज हेल्पफुल फॉर यू नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर लेसन बट दिस इज द बेसिक थिंग्स ऑफ द बायोलॉजी. Done this much? Yes. And water is very important because बिना फूड के तो हम कम से कम 1 महीना रह सकते हैं. बिकॉज फैट इज अ रिजर्व्ड फूड मटेरियल, है ना? यू नो ना, फैट इज अ रिजर्व फूड मटेरियल. अगर हम फास्टिंग करते हैं, अगर हम उपवास करते हैं, तो यही जो फैट है दैट इज बीन ब्रोकन डाउन इनटू द एनर्जी. बट बिना पानी के हम नहीं रह सकते. यस, बिकॉज वाटर इज वेरी एसेंशियल. बिकॉज अपना ब्लड में 90% तो वाटर ही होता है. सो ब्लड understood. So let us see ki what is the role of nutrition. So energy, it provides energy for all the life activities. It gives material, it is a material for growth. It helps in maintenance of the body temperature as well as it repairs the tissue also. How and kaise ye sab karta hai, we will be understanding in the further part of the lesson. Understood? Just go through this PPT, this slide. Any doubt you can just ask me. I will just share the textbook with you all. So children, please note down what the deleted part of this lesson, because that will be required for you all. You can all see the textbook. Textbook दिख रहा है आप सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So write down please what are the deleted part of this lesson. So write down 14.1 is deleted. Full human digestive system has been deleted. 14.2. 14.3. 14.4 and 14.5. ठीक है? I have to admit these children again and again. Madam, are you there? Please admit these children from your end, please. Again and again they have been seen. Okay. So only you all can see that only this particular part, that is 14.6 has been there for you all, okay, to understand. Only 14.6 is there. Understood? Yes or no? Yes, ma'am. Acha. Now 14.6 may only you have to understand the diseases, the different types of diseases. So I will be explaining you that in detail.
ठीक है, पर डिजीजेस समझने के लिए let us just understand the parts of the digestive system, क्योंकि तभी आपको पूरा डिजीजेस समझ में आएगा. तो in short I will explain you the digestive system in detail. So our digestive system begins with the mouth. Then when you say तो ये जो चेम्बर है, दिस चेम्बर इज कॉल्ड एज अ बकल कैविटी और द बकल चेम्बर. ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए. नो डाउट भले बिकॉज ऑफ दिस कोरोना आपको ये लेसन आपके कॉलेज के एग्जाम्स के लिए नहीं है, but I hope there may be many children those who are interested in giving the medical entrance exam. The medical entrance में ये topic deleted नहीं है. This is an important topic. ठीक है. So you should know the parts of our digestive system. So mouth is been bounded by the upper lip and the lower lip. What is the function of the lips? To prevent the falling down of the food when the animal is feeding. फिर जब आप करोगे तो एक चेम्बर आता है, एक कैविटी आती है. इस चेम्बर को बोला जाता है बकल कैविटी या फिर बकल चेम्बर, या फिर इसको ओरल कैविटी या ओरल चेम्बर भी कह सकते हो. इस बकल कैविटी में या ओरल चेम्बर में 3 चीजें हैं. कौन कौन सी चीजें हैं? हमारा दांत, हमारा टंग और एक सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है, 3 pairs of salivary gland. ठीक है, so 3 things are there in the buccal cavity: our teeth, our tongue and the 3 pairs of salivary gland. Understood this much? फिर buccal cavity open होता है into the pharynx. pharynx. बच्चे लोग याद रखो, जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो फिर से आपको pharynx नहीं पढ़ाया जाएगा, because 12th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ना है जिसका नाम है रेस्पिरेशन, जिसमें आप पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ोगे. तो उस टाइम पे आपको फेरिंग्स के बारे में सिर्फ बताया जाएगा, पर क्योंकि ये कंसिडरेशन करके, क्योंकि आपने 11th में इसको सुना है, पढ़ा है. सो फेरिंग्स क्या है, नोट डाउन कर लो. फेरिंग्स इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ डाइजेस्टिव एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का ये कॉमन मीटिंग पॉइंट है. अंडरस्टूड? यस. फेरिंग्स के अंदर एक रीजन होता है, एक स्पेस होता है जिसे कहा जाता है ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप होता है जिसे कहा जाता है एपीग्लॉटिस. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाला हिस्सा मेरा ग्लॉटिस है तो उसके ऊपर ये जो फ्लैप है, मैं फ्लैप क्यों बोल रही हूँ कि ऊपर नीचे हो सकता है, सो ये फ्लैप को मैं क्या बोलूंगी, एपीग्लॉटिस. तो ये एपीग्लॉटिस बंद होता है जब हम खाना को निगलते हैं, जब हम स्वॉलोइंग करते हैं. ठीक है, और फिर ये वापस ओपन हो जाता है. तो ओपन एंड क्लोज ये होता रहता है बिकॉज इट इज अ कार्टिलेज. ठीक है, ये कार्टिलेज से बना है. अभी आप एनिमल टिश्यू पढ़ोगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपका 11th स्टैंडर्ड का, उसमें आप अलग अलग टाइप के कार्टिलेज पढ़ोगे. तो उस टाइम पे ये वर्ड आएगा एपीग्लॉटिस. तो भले ये लेसन डिलीटेड है बेटा, पर इसमें से जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो आपको अलग लेसन के लिए काम में आएंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. अंडरस्टूड? ठीक है. सो ग्लॉटिस के ऊपर होता है एपीग्लॉटिस विच विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, हमारे फूड के दाने को, हमारे फूड ग्रेन्स को हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से बचाता है, प्रिवेंट करता है. कौन? ये एपीग्लॉटिस. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस मैम. ओके. फिर आता है फेरिंग्स के बाद आता है हमारा फूड का पाइप. फूड पाइप जिसको आपने लोअर क्लासेस से पढ़ा है, जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस. फूड पाइप, ईसोफेगस. ईसोफेगस किसमें जुड़ता है? स्टमक में जुड़ता है. आप स्टमक को देख पा रहे हो बेटा कि इट इज रफली अ जे शेप ऑर्गन है ना, इट इज रफली अ जे शेप ऑर्गन. स्टमक में भी 3 हिस्से होते हैं, ऐसे 3 हिस्से होते हैं: कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट एंड पाइलोरिक पार्ट. फिर स्टमक के बाद स्टार्ट होता है ऐसा पहला यू शेप का, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका डायमीटर छोटा है, जबकि है ये काफी लंबा, 6 मीटर का ट्यूब होता है ये. तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज आइदर ऑल्सो कॉल्ड एज अ लॉन्ग इंटेस्टाइन बिकॉज उसका लंबाई ज्यादा है, सिर्फ डायमीटर छोटा है. ठीक है.
फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये वाला है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा है, पर है वो शॉर्ट इंटेस्टाइन, हाँ, लेंथ में छोटा है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर आप बात करोगे तो उसमें 3 हिस्से होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम के बाद शुरू होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी 2 हिस्से होते हैं, कोलॉन एंड रेक्टम। कोलॉन एंड रेक्टम। जहां पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है और जहां पे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है, वहां पे एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। आपने सुना होगा इसका नाम, वेस्टिजियल ऑर्गन का। इसका नाम है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स सुना है नाम अपेंडिक्स का? Yes, ma'am. Yes. Yes. So, this thing, appendix is a vestigial organ which is non-functional in human being, but it shows the evolution. Evolution का मतलब क्या होता है बेटा? ये बताता है कि हम हमारे जो पूर्वज थे वो हर्बीवरस थे। हम भी काऊ, बफेलोज, गोट्स वगैरह से इवॉल्व हुए हैं। ये हमें ये अपेंडिक्स बताता है, इवोल्यूशन बताता है। जैसे आज भी हमारे पास टेल बोन है, ये इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताता है। इट इज अ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस शोइंग अस दैट कि वी आर इवॉल्व्ड फ्रॉम मंकीज। Similarly, the appendix, which is non-functional, है ना, appendix is non-functional, but it shows that we are evolved from herbivorous animal. Herbivorous का मतलब क्या होता है बेटा? जो लोग सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उसे हम हर्बीवरस कहते हैं। जो मीट और फ्लेश खाते हैं उसे हम कार्निवरस कहते हैं। समझ में आ गया इतना? तो जो भी गाय होते हैं, बफेलोज होते हैं, काऊ बफेलोज होते हैं ना, उनके अंदर अपेंडिक्स फंक्शनल होता है। कैसे फंक्शनल होता है? वो एक एंजाइम बनाता है सेल्यूलोज, जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। सेल्यूलेज का एंजाइम विच विल डाइजेस्ट सेल्यूलोज। अंडरस्टूड? क्योंकि ये सब चीजें आपको डिटेल में नहीं पढ़नी है, इसलिए मैं जस्ट आपको व्यू बता रही हूँ कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। देन ग्लैंड्स की अगर हम बारे में बात करेंगे तो सलाइवरी ग्लैंड्स तो है ही हमारे पास। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स है जो कि सलाइवा रिमूव करता है। सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। स्टमक में हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि बहुत सारे जूसेस, गैस्ट्रिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। फिर इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम इंटेस्टिनल ग्लैंड्स कहते हैं। इंटेस्टिनल ग्लैंड्स को सक्कस एंटेरिकस भी कहा जाता है इन मेडिकल टर्म, ठीक है, सक्कस एंटेरिकस भी कहा जाता है। अगेन विच विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। अंडरस्टूड? फिर आता है लिवर, सबसे बड़ा ग्लैंड, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज लिवर। अबाउट 1.5 kg राइट साइड में प्रेजेंट होता है क्योंकि लिवर हमारा राइट साइड में प्रेजेंट है और काफी बड़ा है, इसीलिए जो हमारा राइट साइड का जो किडनी है ना वो थोड़ा सा नीचे शिफ्टेड है एज कंपेयर टू द लेफ्ट साइड का किडनी। समझ में आया? अभी आप 11th स्टैंडर्ड में ना किडनी का भी लेसन पढ़ने वाले हो। यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द किडनीज ऑल्सो। इतना समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. So because our liver is very big, what happened? Our right side का kidney shifted little bit down as compared to the left side का kidney. Okay, done. So this was all about the. Then pancreas. Pancreas is also a very important gland. It is a dual gland. This is the only gland which is dual gland. Again, next year 12th standard we are going to learn about pancreas in much more detail. ठीक है? So यही एक ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन इन नेचर है। आपको पता है बेटा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या फर्क है? कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है मुझे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का मतलब क्या है? वो भी आपको बताओ क्या आएगा, तो मैं हूं ना हेल्प करने के लिए। जस्ट ट्राई टू से। Endocrine means it is out and exocrine means it is out and endo means it is in, like that.
अच्छा, तो आउट एंड इन कहाँ पर बेटा? यस, यू आर राइट, बट आउट एंड इन इज रिलेटेड टू व्हाट? बॉडी के बाहर और बॉडी के अंदर. यस, यू आर सेइंग दैट एक्सो का मतलब आउट होता है एंड एंडो का मतलब इन होता है. दैट इज वेरी राइट बेटा, बट ये आउट एंड इन कहाँ पर है? यस, गुड ट्राई बच्चा. एनीबडी एल्स? Anybody else who will just try? Just try to speak beta. When you're interactive na, your brain works very fast. Yes, when you're interactive. Yes, Yash is telling ruminant. अच्छा, Yash was telling me ruminant. Ruminant stomach अलग होता है बेटा. Ruminant stomach का मतलब आपको पता है क्या होता है? As you have said the word over here, रूमिनेंट स्टमक का मतलब ऐसा स्टमक जो एक बार आपने देखा होगा कि गाय भैंस जब खाते तो घास फटाफट खा ले और फिर कहीं तो आराम से बैठते हैं, फिर वो लोग उस घास को वापस ऊपर लाकर चबाते हैं. तो ऐसा स्टमक जिसमें रिवर्स आके चबाना हो सकता है, ऐसे स्टमक को रूमिनेंट स्टमक कहा जाता है. समझ में आया बेटा यश? अंडरस्टूड यश? यस मैम. ओके, तो मैं रूमिनेंट स्टमक की बात नहीं कर रही थी यहाँ पे. रूमिनेंट स्टमक इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, एंड अपेंडिक्स का काम अलग होता है. दोनों अलग अलग चीजें हैं. ओके, सो यस. अच्छा, तो आई वाज टेलिंग यू, आई थिंक सो. हाँ यस बेटा बोलो. Endocrine glands are glands that secrete hormones without ducts and exocrine which secretes through ducts. शाबाश, वेरी गुड बेटा मानव, वेरी गुड. यस, यू आर वेरी करेक्ट. एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो एंजाइम्स मोस्टली बनाते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कोई केमिकल चीजें बनाती हैं. जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो लोग मोस्टली क्या बनाते हैं? हार्मोन्स बनाते हैं, ठीक है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या बनाते हैं? मोस्टली दे प्रिपेयर दी हार्मोन्स. वेरी करेक्ट. अच्छा, तो ये तो आपने मुझे बता दिया कि वो बनाते क्या, पर पहले अभी आपको मैं उसका मतलब समझाना चाहूंगी कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में फर्क क्या होता है. एक्सोक्राइन आर द वन विच आर विथ डक्ट या फिर पाउच. जैसे कि हमारा टीयर ग्लैंड्स हमारे आईज के यहाँ पे है तो उसके डक्ट्स यहीं पर है. हमारा सलाइवरी ग्लैंड हमारे बकल कैविटी में तो उसके डक्ट्स यहीं पे हैं. हमारे स्वेट ग्लैंड्स हमारे स्किन पे तो उसके डक्ट्स यहीं पे हैं. समझ में आ रहा है? समझ में आया? यस. तो जिसके पास डक्ट है, जिसके पास पाउच है, जो अपना सिक्रीशन उसी पाउच में, उसी डक्ट में बाहर डाल रहा है, उसको हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड. जैसे कि टीयर ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, यस, विच आर प्रेजेंट ऑन स्किन, देन सलाइवरी ग्लैंड. समझ में आया बेटा? बट एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है जिनके पास ना डक्ट है ना पाउच है, इसीलिए हम इसे डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है. डक्टलेस, बिना डक्ट वाले. तो फिर ये अपना सिक्रीशन डालते कहाँ पर है? बॉडी के अंदर, इसीलिए एंडोक्राइन. अब बॉडी के अंदर मतलब कहाँ डालते हैं? तो बॉडी के अंदर मतलब डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं. अब समझ में आया सबको? मतलब एंडोक्राइन जितने भी है हमारे बॉडी में, वो लोग सारे लोग कहाँ पर डालते हैं अपना सिक्रीशन? ब्लड के अंदर डालते हैं, इसीलिए उसे एंडोक्राइन कहा जाता है. एक्सोक्राइन ऐसे नहीं है. एक्सोक्राइन जो उनका लोकेशन है उसी जगह पर वो सिक्रेट करते हैं. अब समझ में आया? यस मैम. अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, ma'am. एनीवन? अच्छा, किसी ने मुझे पूछा नहीं कि मैम एंडोक्राइन का आपने एग्जाम्पल नहीं बताया, तो मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी. बहुत सारे हैं, आपको 12th स्टैंडर्ड में भी डिटेल में पढ़ना है. हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में होता है, हमारा थायराइड ग्लैंड जो नेक में होता है, थाइमस ग्लैंड जो हार्ट के पास होता है, एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होता है. तो ऐसे बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं. उसी में एक पैनक्रिया भी है जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है. पैनक्रिया आपको पता है क्या बनाता है? जो वेरी फेमस हार्मोन है इंसुलिन, इंसुलिन बनाता है, ठीक है. यस, अंडरस्टूड. सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन व्हिच इज देयर फॉर योर थियरी एग्जाम. दैट इज 14.6 न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स.
ठीक है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। ओके, नाउ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स में आपको पढ़ना है PEM। PEM का मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। क्या होता है? प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। अंडरस्टूड? ठीक है, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन का मतलब है जब प्रोटीन की कमी से अगर कुछ चीजें बीमारी होती है तो उसे हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। ऑल ऑफ यू कैन सी द PPT। सबको दिख रहा है PPT? यस और नो? No, teacher. No. You can't see? Okay, wait. Now, Yes. निसर्ग बेटा एक जगह बैठ के सुना करो लेक्चर। Okay. So, protein energy malnutrition. I was talking about that. That is PEM. Okay. Just a second. I will just go back to how many teeth you have? कितने दांत होते हैं आपके पास? 32. और छोटे बच्चों के अंदर? 28. कितना बेटा? How much in small kids? 28. No, it's 20 बेटा, 20. ठीक है, 20 होते हैं छोटे बच्चों में। Again, some children are coming. I have to admit them. Okay, so now there are different types of disorders which you have to learn. The very first disorders is the indigestion. क्या बोलते हैं हम उसको? Indigestion. What do you mean by indigestion? It's a very common term. Indigestion का मतलब क्या होता है? बताओ बेटा मेरे को. What do you mean by the term indigestion? ये सब तो कॉमन चीज है, अभी आप ये मुझे बता सकते हो, बताओ। The food that which we eat is not digested properly is known as indigestion. अच्छा, वेरी गुड। जो भी फूड है वो अच्छी तरह से जब डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसे हम इंडाइजेशन कहते हैं। तो क्यों नहीं डाइजेस्ट होता? What can be the reason for that? Is there any Maybe specific reason? हाँ, बोलो। Because of less enzymes. Okay, because of less enzyme. Very good answer बेटा, very good answer. Okay, okay, चलो और बताओ मुझे और क्या कारण हो सकता है इंडाइजेशन का? Improper chewing. Yes, very good बच्चा। Improper chewing. You are very smart children. Yes, और बताओ और क्या रीजन हो सकता है? Metabolism do not work properly. Yes, मेटाबॉलिज्म बराबर नहीं है। Yes, और जो बहुत ही कॉमन सा रीजन है, Improper food. इम्प्रॉपर फूड मतलब कंटामिनेटेड फूड आप बोलना चाह रहे हो क्या कि कोई कंटामिनेटेड फूड है, ऐसे बोलना चाह रहे हो बेटा? Yeah. इम्प्रॉपर फूड मतलब फूड तो हमेशा अच्छा ही होता है। इम्प्रॉपर मीन्स नॉट कंटामिनेटेड फूड बोल रहे हो आप। अच्छा, नेक्स्ट। Lack of nutrition in diet. लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन डाइट। ओके, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट। क्या बाबू? यस, ओवर ईटिंग। दैट वाज आई वाज वांटेड दिस आंसर। यस, आप कभी शादी ब्याह में, अभी तो कोई कोरोना की वजह से नहीं जाते है, पर जब आप पहले जाते थे तो क्या करते थे? इतने सारे काउंटर है तो सब काउंटर पे सब टेस्ट करना है ना। बेचारा कंफ्यूज हो जाता है स्टमक जब ऊपर से आता है तो, अरे अभी गुलाब जामुन को डाइजेस्ट करूँ कि अभी डोसा को डाइजेस्ट करूँ कि अभी चाइनीज को डाइजेस्ट करूँ, है ना। बेचारा स्टमक तो ऐसे चकराता होगा अंदर से कि किसको डाइजेस्ट करूँ अभी। तो जब स्टमक चकराने लगता है, इतने सारे
चीजों को देखकर, तो फिर क्या होता है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। समझ में आया बच्चा? तो दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर इंडाइजेशन, दैट इज ओवर ईटिंग। साथ में बहुत टाइट कपड़े पहनने, बहुत ज्यादा अगर आप टाइट कपड़े पहनते हो तब भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट, खाना खा के तुरंत सो जाते हैं तो भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। यस, एंजाइटी का मतलब समझता है ना बेटा आपको? एंजाइटी मीन ज्यादा गुस्सा आना, डिप्रेशन में आना। यस, अभी आपको जब एग्जाम का टाइम था, अभी तो एग्जाम का भी आपने दिया ही नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम है ना, पर जब भी आपको एग्जाम का टाइम रहा होता तो आपको ऐसा टेंशन नहीं आता था? पेट में ऐसे बटरफ्लाईज आते थे कि नहीं? स्टमक में बटरफ्लाईज आते थे कि नहीं एग्जाम के नाम से, कि नहीं आते थे किसी को? यस और नो? यस मैम। आते थे। तो फिर उस टाइम भी आप बहुत ज्यादा खाते थे क्या? जब भी आपका एग्जाम रहता था तभी भी आप बहुत ज्यादा खाते थे क्या? नहीं। तो फिर तभी भी आप, कोई बच्चे ज्यादा खाते थे, कोई बच्चे नहीं खाते थे। अगेन दैट इज द प्रॉब्लम फॉर इंडाइजेशन। अंडरस्टूड? सो indigestion basically is it is associated with the stomach burn, heart burn, हार्ट में जलन होना, स्टमक में जलन होना, ठीक है? It is because of the improper digestion, because of the anxiety means ज्यादा गुस्सा आना, ठीक है? Anxiety is a type of depression, right? It's a type of a depression itself. Then inadequate enzyme का होना, फूड पॉइजनिंग होना, या फिर बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना, बहुत ज्यादा तीखा खाना, ठीक है? इससे भी क्या होता है, इंडाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। अंडरस्टूड? सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड वेरी सिंपल ऑल्सो, ठीक है? अभी जो भी आप प्रॉब्लम्स पढ़ोगे ना, ऑल दे आर द कॉमन प्रॉब्लम्स, ठीक है? Okay, next is the ये अपने आप ही चलते जा रहे हैं पीपीटी, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है इसको। नेक्स्ट इज जॉन्डिस। टेल मी अबाउट द जॉन्डिस। पीलिया। किसी को बचपन में हुआ था जॉन्डिस? इसको कॉमनली क्या बोला जाता है? बोलो मुझे जॉन्डिस को। पीलिया। जॉन्डिस को नॉर्मल टर्म में, कॉमन टर्म में क्या बोला जाता है? काविड। यस, वेरी गुड बेटा, काविड। या फिर हिंदी में क्या बोला जाता है? पीलिया। पीलिया। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। उसका आईज आपको कैसा दिख रहा है इंसान का? येलो। स्किन भी थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, स्किन भी थोड़ा बहुत येलोइश दिख रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है बेटा? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट हैपेंस इन जॉन्डिस? यस, येलो तो हो जाता है, स्किन तो येलो हो जाता है, दैट वी ऑल नो, एंड इसके लिए उसको काविड बोलते हैं, उसके लिए उसको जो पीलिया बोलते हैं। बट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द जॉन्डिस? व्हिच ऑर्गन हैज बीन इफेक्टेड? व्हिच ऑर्गन हैज बीन इफेक्टेड? अगेन द चिल्ड्रंस आर कमिंग। लिवर। ओके, यस बेटा, एक मम्मी मिनट। लाइन क्या है? नाम? सुकृति। इतना लेट ज्वाइन करते हो बेटा आप लोग? Okay, yes. So liver is been affected. Now what happens during the jaundice? I just want to elaborate this topic. See, in normal condition, our liver produces the bile juice. ठीक है? आपको चाहिए तो आप लिख भी सकते हो. In normal condition, our liver produces bile juice. Again, Shreya is coming inside. इतना लेट 1:30 तो ऑलरेडी हो गया, सिर्फ आधा घंटे के लेक्चर के लिए बेटा आप लोग ज्वाइन करते हो। Okay, again come back to the topic once again. So in normal condition, the liver produces the bile juice, and this bile juice contains bile pigments, bilirubin and biliverdin. Bilirubin and biliverdin are the two bile pigments. ये याद रखो वर्ड 12th स्टैंडर्ड के लिए, आप लिख लो कहीं तो, ठीक है? So bile juice के अंदर दो pigments होते हैं, bilirubin and biliverdin, which gives the yellowish green color to the bile juice. बाइल जूस का कलर क्या होता है? येलोइश ग्रीन कलर का होता है। अंडरस्टूड? अच्छा, अब जब नॉर्मल लिवर, अभी हम सबका लिवर नॉर्मल काम कर रहा है, तो हम सबके अंदर जो बाइल जूस बन रहा है ना, वो वाटर सोल्यूबल बन रहा है, ठीक है? इट्स अ वाटर सोल्यूबल वन।
जो कि पानी के साथ घुल जाता है और फीसेस के थ्रू ये बॉडी के बाहर निकल जाता है, ठीक है। बट जब हमारा लिवर ठीक नहीं है, अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, उस टाइम पे ये लिवर वाटर सोल्यूबल ना बना के क्या कैसा बनाता है, Solid. फैट सोल्यूबल बाइल जूस बनाने लगता है, ठीक है। और फैट सोल्यूबल होने के वजह से, क्योंकि बाइल जूस का कलर ही ग्रीनिश येलो इन कलर है, फैट सोल्यूबल होने की वजह से हमारे स्किन में डिपॉजिट होने की वजह से इट गिव्स अ येलोइश कलर टू द स्किन, टू द आईज, टू द नेल्स। समझ में आया? तो जिसको भी जॉन्डिस हुआ रहता है उसको क्या बोला जाता है कि बिल्कुल भी तेल नहीं खाना है। क्यों तेल नहीं खाने के लिए मना किया जाता है? हैव यू एवर थॉट एज अ साइंस स्टूडेंट यू शुड नो द रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। क्यों तेल खाने के लिए मना किया जाता है? बिकॉज जब लिवर का तबीयत ठीक नहीं है तो लिवर का काम क्या है? बाइल जूस बनाना। और बाइल जूस से होता क्या है? फैट का डाइजेशन होता है, ठीक है। बाइल जूस से फैट का डाइजेशन होता है। तो अगर हमें पता है कि लिवर ठीक नहीं है, वो बाइल जूस बराबर से नहीं बना पा रहा है, तो हम अगर उसको अगर हम फैट खाएंगे तो बेचारा लिवर की तबीयत तो ठीक नहीं है, यस, वो फैट कैसे डाइजेस्ट कर पाएगा? इसीलिए जब भी किसी को जॉन्डिस हुआ रहता है उसको ऑयल अवॉइड किया जाता है, सो दैट अगर हम ऑयल नहीं खाएंगे तो लिवर को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, और रेस्ट मिलने के बाद अगेन लिवर बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? समझ में आया मेरी बात? ठीक है। सो साइंटिफिकली यू शुड ऑल नो द रीजन बिहाइंड एवरीथिंग विच इज बीन फॉलोड, ठीक है। यस और नो? Yes. Okay, I will share the textbook also with you all. Just a second. So, jaundice is not a problem; it is a condition. Okay, please all of you make a note that it is a condition. Okay, so I will just share this. All of you can. I hope you can see the textbook now. तो इंडाइजेशन हमारा पढ़ के हो गया है। मैं यहाँ से सब कुछ आपको बता दे रही हूँ, सो दैट आपको कोई भी चीजों का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो इंडाइजेशन ओवर ईटिंग से होता है, एंजाइम्स कम होने की वजह से, तीखा खाने की वजह से, एंजाइटी मतलब कि बहुत टेंशन लेने की वजह से, गुस्सा करने की वजह से, यस, एंड इम्प्रॉपर डाइजेस्टेड फूड और फूड पॉइजनिंग की वजह से भी होता है। इट लीड्स टू लॉस ऑफ एपेटाइट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लॉस ऑफ एपेटाइट? आप लोग लिख सकते हो बेटा। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है भूख कम लगना या भूख नहीं लगना, भूख कम लगना या फिर भूख नहीं लगना। एसिडिटी को हम एसिड रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, एसिडिटी होना, हार्ट बर्न होना। रीगर्जिटेशन का मतलब है वॉमिटिंग होना। री मीन्स वापस, गर्जिटेशन मीन्स वापस आना, जो खाया हुआ फूड है वो वापस ऊपर आना, उसी को हम कहते हैं रीगर्जिटेशन या फिर वॉमिटिंग। नॉर्मल टर्म में उसे वॉमिटिंग कहा जाता है। लिखा आपने इसका मतलब? डिस्पेप्सिया का मतलब है एब्डोमिनल पेन एंड स्टमक पेन। खिचड़ी। तो अगर किसी को इंडाइजेशन है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? ओवर ईटिंग नहीं करना है, हाँ, आफ्टर खाना खाने के बाद तुरंत लाई डाउन नहीं करना है, तुरंत लेटना नहीं है, स्पाइसी फूड कम खाना है, ऑयली फूड कम खाना है, स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है, जंक फूड को नहीं खाना है। इससे सब चीजों से हम इंडाइजेशन को अवॉइड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? Yes. ओके, फिर अभी मैंने आपको जॉन्डिस बताया, तो मैं प्लीज अभी इसमें जॉन्डिस में आती हूँ, फिर मैं आगे का पार्ट बताती हूँ। सो जॉन्डिस में क्या होता है? येलोनेस ऑफ द कंजेक्टिवा ऑफ आइस। कंजेक्टिवा का मतलब क्या होता है? अपने आइस का जो व्हाइट पार्ट है ना बेटा, जो व्हाइट वाला हिस्सा है अपने आइस का, उसको हम कंजेक्टिवा बोलते हैं। तो वो जो कंजेक्टिवा है वो पूरा पीला हो जाता है, हमारा स्किन पीला होने लगता है। यस, स्टूल मतलब फीसिस, जो एनस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है ना, उसको दो नाम से बोला जाता है, या तो आप उसको स्टूल भी बोल सकते हो या तो उसको फीसिस भी बोल सकते हो आप। तो स्टूल या फीसिस व्हाइट कलर का होने लगता है। क्यों? क्योंकि बाइल जो है वो तो स्किन में डिपॉजिट होने लगा है, इसीलिए। देन इसके अंदर एबनॉर्मल बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म होने लगता है, जो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे। Yes, you can just have a look. Bilirubin produced from breakdown of hemoglobin.
इज आइदर वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल जो बिलिरुबिन है वो बहुत ही खतरे वाला है, टॉक्सिक है टू द ब्रेन सेल्स। Hence, serum bilirubin values have great diagnostic importance. There is no specific treatment to the jaundice, but we can take a supportive care, we can take a proper proper rest, and because of which the jaundice can be cleared. I hope there is no doubt with the jaundice also. Done? सबको समझ में आ गया है? फाइनल Yes or no? Yes, ma'am. कोई आके याद होता है, देखो अंदर कितना Next is vomiting. Again a very common thing. समझ में Regurgitation. वॉमिटिंग होने के पहले वॉमिटिंग जैसा फीलिंग आती है, जैसे हम कहते हैं नॉशिया उधर नहीं तो उठा लेता या नॉशियाटिक आज भी मैं उठाया था। नॉशियाट या फिर नॉशियाटिक फीलिंग का मतलब है वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन होना खिड़की में और उसके बाद वॉमिटिंग होना। तो वॉमिटिंग का मतलब क्या है? जो भी स्टमक में जो खाया हुआ खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जबकि वो उल्टे डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आ रहा है। पर रिवर्स पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, रिवर्स मींस उल्टा, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट मींस contraction and relaxation. So it is controlled by our medulla oblongata. आपको पता है medulla oblongata की तरह छोटा मेंदु अपना सर में जो हाइंड ब्रेन में medulla oblongata एक रीजन होता है हमारे ब्रेन का, which joins the spinal cord. before the spinal cord के ऊपर medulla oblongata है, which is having the vomiting centers. उसमें vomiting centers होते हैं which lead to the vomiting. ठीक है? So ये हो गया. Next let us talk about this constipation and diarrhea. Both are opposite to each other. डायरिया मैं पहले आपको बताऊंगी, फिर आप कॉन्स्टिपेशन अपने आप समझ जाओगे। डायरिया का मतलब है जिसे हम कॉमन टर्म में कहते हैं लूज मोशन, वाटरी स्टूल। लूज मोशन को हम क्या कहेंगे? डायरिया कहेंगे। डायरिया होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मे बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मे बी सम जेनेटिक प्रॉब्लम, मे बी सम बाउल सिंड्रोम, सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन फॉर डायरिया। ठीक है, तो डायरिया का मतलब क्या है? पासिंग लूज वाटरी स्टूल। अब लूज वाटरी स्टूल में कभी कभी इतना ज्यादा होने लगता है कि ब्लड आने लगता है स्टूल में, ब्लॉटिंग होने लगता है, नॉशिया फीलिंग, गैस फॉर्मेशन, एवरीथिंग इज बीन हैपनिंग। सो ये इसका कारण क्या है होने का? इन्फेक्शन थ्रू फूड और वाटर, या फिर कुछ अल्सर्स होने, देन कॉलियाइटिस होना, कोलिक रीजन में आइटिस होना। बायो में आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। सो कॉलिक रीजन में अगर इन्फ्लेमेशन है, दैट में आल्सो लीड टू द डायरिया। इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन या फिर कोई भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से भी डायरिया हो सकता है। I hope you have understood this much also. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Now constipation मतलब लूज मोशन का उल्टा। अगर हफ्ते में 1 वीक में अगर एक बार भी डेफिकेशन नहीं होता है तो उसे हम कहेंगे कॉन्स्टिपेशन, मतलब लूज मोशन का उल्टा। When frequency of defecation is reduced to less than 1 per week, एक वीक में एक बार भी डेफिकेशन नहीं होना, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा बेटा? सारा जो बॉडी का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी में ही जमा है, बाहर रिमूव नहीं हो रहा है। इट में लीड टू टॉक्सिसिटी। ठीक है, बहुत सारा टॉक्सिसिटी हो सकता है बॉडी को, बिकॉज ये सारा वेस्ट प्रोडक्ट डेली बेसिस पे नहीं निकल रहा है बाहर। इट में लीड टू द एब्डोमिनल पेन, यस, डिस्टॉर्शन, रेयरली परफोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट there can be some neurological dysfunctionings also. ठीक है, देन अगर इसे ठीक करना है तो आप क्या कर सकते हो? वाटर इनटेक बढ़ा सकते हो।
वाटर इनटेक का मतलब क्या है? कोई भी जूस वगैरह ज्यादा खाना, जूसी चीजें ज्यादा खाना, खिचड़ी वगैरह ज्यादा खाना, ऐसा फूड प्रोडक्ट जिसमें फाइबर ज्यादा है। फाइबर वाले चीजों को खाने से क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ दूर हो जाता है। समझ में आया? अंडरस्टूड? यस मैम। Yes, ma'am. सो हमारा कॉन्स्टिपेशन हो गया समझ के, डायरिया हो गया समझ के, जॉन्डिस हो गया, वॉमिटिंग हो गया, इंडाइजेशन भी हो गया। अब आपको सिर्फ 2 टॉपिक्स पढ़ाना बाकी है, दैट इज द मेरास्मस एंड क्वाशियोकर। I was about to show you the photo also, but that is not opening because of some reason. Okay, I will explain you that way. So I was explaining you this PEM. I just wanted to show you the photos of this Kwashiorkor and Marasmus children, but it is not opening on the background also. I've checked just now. So Kwashiorkor and Marasmus ये दोनों भी छोटे बच्चों में होने वाली conditions हैं। क्वाशियोकर जो है वो 3 साल तक के बच्चों में होता है, और जो मेरास्मस है वो 1 साल के बच्चों के अंदर तक होता है। दोनों का डिफरेंस इतना समझ लो। आप लोग आज ही इसका डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है? टुडे ओनली यू विल बी राइटिंग डाउन द डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स। मैं आपको एक्सप्लेन करते वक्त इसको डिस्टिंग्विश में एक्सप्लेन करूंगी, पर आप बाद में खुद से अपने मन से लिखोगे डिस्टिंग्विश। तो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? क्वाशियोकर या मेरास्मस, ये दोनों भी कंडीशन में कॉमन पॉइंट क्या है कि दोनों भी प्रोटीन के कमी से होती है। ये दोनों भी चीजें प्रोटीन के कमी से होती है, इसीलिए हम इसे प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। अच्छा, तो क्वाशियोकर का बच्चा कैसा दिखता है और मेरास्मस का बच्चा कैसा दिखता है? तो सबसे पहली बात कि क्वाशियोकर 3 साल तक के बच्चों में हो सकता है, जबकि मेरास्मस जो है वो 1 साल तक के बच्चों में पाया जाता है। अंडरस्टूड? ओके, वेट, आई विल डू द एनोटेशन। 3 इयर्स के बच्चों में होता है, और ये कितना होता है? इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब क्या होता है बेटा? 1 साल के अंदर के बच्चों को हम इन्फेंट कहते हैं। अंडरस्टूड? जो क्वाशियोकर का बच्चा होता है उनका ग्रोथ स्टडेंट ग्रोथ रहता है, मतलब ग्रोथ रुक जाता है। पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, क्योंकि प्रोटीन की कमी है ना बेटा। प्रोटीन तो बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है। एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो पुअर डेवलपमेंट होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है? हेमोग्लोबिन का कमी होना। प्रोट्यूडिंग बेली, प्रोट्यूडिंग का मतलब होता है बाहर आना। ऐसे बच्चे का जो पेट होता है, जो बेली पार्ट होता है, जो एब्डोमेन पार्ट होता है, वो बहुत ही सूजा हुआ रहता है। स्वेलिंग की वजह से वो प्रोट्यूडिंग दिखता है। उसमें इतना इन्फ्लेमेशन होता है, इतना सूजन होता है कि वो प्रोट्यूडिंग मींस बाहर उठा हुआ दिखता है। अंडरस्टूड? ठीक है। देन स्लेंडर लेग्स, हाथ पैर एकदम पतले पतले, स्लेंडर मतलब पतले पतले हाथ पैर होते हैं। बल्जिंग आईज, आंख एकदम बड़ा बड़ा दिखता है। एडिमा ऑफ लोअर लेग्स, जो पैर का फीट होता है ना, वहां पे पैर में सूजन होता है, फीट में सूजन होना। तो एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग। तो स्वेलिंग सिर्फ पैरों में नहीं होता, फेस पे भी स्वेलिंग होता है, मतलब चेहरा में भी पूरा ऐसा पूरा उठा हुआ चेहरा दिखेगा, ऐसा गोल गोल चेहरा दिखेगा, क्योंकि चेहरे में भी स्वेलिंग रहती है, फीट में भी स्वेलिंग होती है। ठीक है। चेंज इन स्किन एंड हेयर कलर, हेयर भी नॉर्मल नहीं रहेगा, ऐसा ब्राउनिश हेयर दिखेगा, एकदम ब्राउन ब्राउन कलर का, अलग टाइप का हेयर दिखेगा। ठीक है। तो ये सब किसका सिम्टम्स है? क्वाशियोकर का सिम्टम्स है। समझ में आया सबको क्वाशियोकर का सिम्टम? समझा? मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, क्वाशियोकर का बच्चा कैसा दिखेगा बेटा? क्वाशियोकर के बच्चे को क्यों होता है क्वाशियोकर? सबसे पहली बात कि प्रोटीन की कमी से होती है, नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कौन से बच्चों में देखा जाता है? कितने साल तक के बच्चों में देखा जाता है? तो 3 साल तक के बच्चों में देखा जाता है। अब आपको पता है कि 3 साल तक का ही बच्चा, जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं, उनको प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि ग्रोथ में, ब्रेन डेवलपमेंट में, हर चीज में प्रोटीन की जरूरत है। क्योंकि प्रोटीन नहीं होगा तो डाइजेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा तो हार्मोन्स काम नहीं करेगा, है ना। तो बहुत सारी चीजों के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। इवन आप भी बच्चों, आप भी ग्रोइंग एज में हो, आप भी अभी तक 18 साल के नहीं हुए, तो आपको भी बेटा प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, बट ज्यादा प्रोटीन नहीं, क्योंकि अगर आप ज्यादा प्रोटीन खाओगे ना तो किडनी खराब हो जाएगा।
लिमिटेड अमाउंट में प्रोटीन डेली बेसिस पे अपने बॉडी में जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 साल तक के बच्चों में देखने के लिए मिलता है। अच्छा, अगर 3 साल तक के बच्चों में प्रोटीन कुछ नहीं दिया जा रहा है, मतलब उसको दूध नहीं मिल रहा है, उसको कुछ दाल नहीं मिल रहा है, उसको कोई नॉनवेज चीजें नहीं मिल रही है खाने के लिए, तो ऐसे बच्चों में क्या होता है, ग्रोथ रुक जाएगा, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा ठीक से, ठीक है। देन आंखें एकदम बड़ी बड़ी दिखेंगी, बल्जिंग आईज दिखेंगी, एकदम नॉर्मल आंख नहीं दिखेंगी। एनीमिया मतलब खून की कमी होगी। पेट में सूजन होने की वजह से प्रोट्रूडिंग बेली दिखेगा। पैर एकदम पतले पतले होंगे पर फीट और फेस एकदम सूजा हुआ दिखेगा। हेयर का कलर, स्किन का कलर, क्योंकि ये प्रोटीन है ना बेटा। हेयर क्या है, प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन होता है हमारे हेयर में, हमारे स्किन में भी केराटिन प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन की कमी है तो ऑब्वियसली ये सब चेंज हो जाएगा। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सो ये आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं हम मेरास्मस की तरफ। तो मेरास्मस भी पीईएम है, प्रोटीन के कमी से ही होता है, पर ये इन्फेंट में देखने के लिए मिलता है अंडर 1 ईयर ऑफ एज, मतलब 1 साल के बच्चों के अंदर, मतलब 1 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, इन सब में भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या सिम्टम्स है, हमें इस बच्चों में क्या क्या फर्क नजर आएगा, ऐसे बच्चों में हमें क्या क्या दिखता है। 1 मिनट है, मैं थोड़ा नीचे लिखना चाहती हूँ इसको। अब ये जो बच्चा है ना बेटा, ये पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि ये इतना पतला होगा, इतना दुबला पतला होगा कि आप इसकी हड्डियां को काउंट कर सकते हो। एक्सट्रीम लीननेस, एक्सट्रीम लीननेस, बहुत ही पतला, क्योंकि ऐसे बच्चों में फैट डिसअपियर हो जाता है। सब क्यूटेनियस मतलब सब मींस नीचे, क्यूटेन मतलब स्किन के नीचे का जो फैट है वो पूरी तरह से गायब है। तो ऐसा गायब है कि आप एक एक रिब्स को काउंट कर सकते हो। तो रिब्स बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट। लिम्स, हाथ और पैर एकदम पतले। स्किन, क्योंकि प्रोटीन की कमी से तो स्किन तो ड्राई होने ही वाला है, और क्योंकि अब फैट भी नहीं है, फैट भी नहीं है, यस फैट भी नहीं है, तो व्रिंकल्ड हो गया, मतलब पूरे झुर्रियां आएंगी स्किन में। लॉस ऑफ वेट, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ये सब तो होगा ही नहीं ठीक से। ड्यू टू एट्रोफी, एट्रोफी का मतलब क्या होता है बेटा, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। Not from एट्रोफी का मतलब है जो चीज अच्छे से काम नहीं कर रहा है उसे हम एट्रोफी कहते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बट देयर इज नो एडीमा, ये याद रखो, दिस इज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट। मेरास्मस के बच्चे में एडीमा नहीं होता, मतलब कोई तरीके की स्वेलिंग नहीं होता, वो बहुत ही दुबला पतला होता है कि आप उसका एक एक हड्डियों को काउंट कर सकते हो। समझ में आ गया? ठीक है। तो अगर मैंने आपके सामने एक दुबला पतला सा बच्चा रख दिया तो आप उस बच्चे को क्या पहचानोगे, क्वाशियोकर की मेरास्मस? Marasmus. मैरास्मस। और एक बच्चा मैंने दिया जो ठीक ठाक दिख रहा है, जिसका पेट एकदम बाहर आया है, उसका चेहरा एकदम गोल गोल दिख रहा है, आंखें एकदम बड़ी बड़ी दिख रही है, वो बच्चा कैशियोरस। क्वाशियोकर, क्वाशियोकर, ठीक है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि ये होता क्यों है। तो आप सब जानते हो कि प्रोटीन की चीजें थोड़ी महंगी मिलती हैं, जैसे कि दूध हो गया, एग हो गया, ये सब चीजों में प्रोटीन होता है ना बेटा। दूध में प्रोटीन है, मिल्क में, एग में प्रोटीन होता है, नॉन वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन होता है, जो भी हमारे पास पल्सेस और दाल है उसमें भी प्रोटीन होता है। जो भी दाल है, जो भी अभी जैसे कि जो नॉन वेज लोग हैं वो लोग ने तो फिश खा लिया, प्रोटीन है, मीट खा लिया, प्रोटीन है, पर जो वेजिटेरियन है उनके पास प्रोटीन का सोर्स क्या है, मिल्क एंड दाल। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें, दाल वाली जो प्रोटीन वाली चीजें होती हैं थोड़ी महंगी मिलती हैं, ठीक है। तो जो गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है, जो दाल खरीद नहीं सकते, जो एग खरीद नहीं सकते, जो मिल्क खरीद नहीं सकते, उनके अंदर ये क्वाशियोकर और मेरास्मस की शिकायत देखने के लिए मिलती है। सो पॉवर्टी एक रीजन है, ठीक है। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। वेरी बिग फैमिलीज, यस, हाउ बिग फैमिलीज, समझो बहुत बड़ी फैमिली है, 12-13 लोगों की फैमिली, और 1 ही लीटर घर में दूध आता है, तो फिर उसको सबको देना है तो उसमें दूध में पानी डाला जाता है, तो ओवर डाइल्यूटेड मिल्क, ओवर डाइल्यूटेड मिल्क इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, क्योंकि अगर उसमें जितना भी पानी डालोगे उसका प्रोटीन तो कम हो गया। देन अर्ली टर्मिनेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, आपने अभी देखा कि मेरास्मस जो है वो
1 साल के अंदर के बच्चों में होता है। तो आप सबको पता है कि 6 महीने तक तो बच्चों को मदर की ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है। पर अगर माँ ही खुद ये है, कमजोर है, माँ को ही कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, तो वो बच्चे को कहाँ से ब्रेस्ट फीडिंग करेगी? तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ द मेरास्मस। मैल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण, ठीक है, प्रॉपर डाइट नहीं होना, ये सारे कारण है, रीजंस हैं फॉर द मेरास्मस एंड द क्वाशियोकर। दोनों का कॉमन रीजन है, ये दोनों का कॉमन रीजन है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. सबको समझ में आया है? किसी को कुछ डाउट है? No, ma'am. No doubt. किसी को मुझे कुछ पूछना है, डाउट है बेटा, जो आपको नहीं समझ में आया है? ऐसा कोई पॉइंट है, ऐसा कोई टर्म है? देखो आप एग्जाम के लिए ना बेटा, डू यू नो द साइंटिस्ट, इसको भी पढ़ा करो। हाँ, ये वाले कॉलम को भी पढ़ा करो। हाँ, आपको मैं एक चीज अभी के लिए, अभी से आप 12th के लिए प्रिपरेशन करो अपने आप को। आपके 11th और 12th के टेक्स्ट बुक में जो भी ऐसे बॉक्सेस में दिए गए हैं, ब्लू बॉक्सेस में, पिंक बॉक्सेस में, डू यू नो, इंटरनेट माय फ्रेंड, ऐसे ऐसे बहुत सारे दिए गए हैं, इन सब को पढ़ा करो, ठीक है? बिकॉज इन सब में से ही आपको बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है? तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस इंडियन वुमन, ठीक है? शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन, कमला. She has received the PhD degree. She has worked under the Dr. Robert Hill. Okay. She has discovered the cytochrome C. What is cytochrome C? You will be learning in the respiration lesson. It is an electron carrier. Cytochrome is an electron carrier जिससे कि ATP generate होता है in the mitochondria. ठीक है? From potato she has discovered this. She has also worked on the nutritional aspects of legumes, milks and nira. ठीक है? So she has designed a protocol for RA dairy to provide the curdling of milk. Understood? So ये सब जो मेन साइंटिस्ट है जिन्होंने काम किया है उनके बारे में भी आपको पढ़ना जानना बहुत जरूरी है. Understood? Then yes, one more. Do you know वाला कॉलम भी बहुत इम्पोर्टेंट है. अल्कोहल ज्यादा पीने से क्या खराब होता है? Which organ get destroyed because of alcohol? Liver. यस, अगर अल्कोहल ज्यादा पिएंगे ना, तो यू कैन सी ओवर हियर, अल्कोहल ज्यादा पीने से क्या होता है? फैटी लीवर होता है. क्या होता है? फैटी लीवर, जिसे हम लिवर कायरोसिस भी कहते हैं. लिवर कायरोसिस, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम को ही हम पहले जॉन्डिस बोलेंगे. जॉन्डिस का और हायर स्टेज इज कॉल्ड एज हेपेटाइटिस. जॉन्डिस का ही हायर फॉर्म इज कॉल्ड एज हेपेटाइटिस. सो अगर अल्कोहल ज्यादा पिएंगे तो इसकी वजह से क्या होता है? ये सारे लिवर के प्रॉब्लम होते हैं. So I hope all of you have enjoyed the lecture today, learning the different types of disorders, different kinds of all these things. Understood all of you? Yes, ma'am. All of you have underlined PEM. Yes, ma'am. Protein किसी को भी energy. कुछ भी डाउट नहीं है? पक्का? बट नेक्स्ट टाइम से ना बेटा यू कम विद अ डाउट. देखो आप लोग का दिमाग बहुत यंग दिमाग है, आप लोग ज्यादा सोच पाते हो मुझसे भी, है ना? तो कम विद अ ब्यूटीफुल डाउट्स, अच्छे डाउट्स. मैम. हाँ बोलो बेटा. Ma'am, as you said that kwashiorkor is for children under the age of 3. So what about children who are above the age of 3? अगर हुआ तो see, kwashiorkor and marasmus they have been limited to a age group. बेटा, are you getting the point? ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद नहीं हो सकता है. अगर आपके भी एज में, अभी आप भी हो फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर 1 महीना 2 महीना कोई प्रोटीन वाली चीज नहीं खाए तो धीरे धीरे आपका भी डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Thank you. अंडरस्टूड? सी बेटा, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू ना बच्चा, कि योर एज इज आल्सो ग्रोइंग एज. अभी आप भी टीनेज में हो, है ना? यू आर आल्सो इन द प्यूबर्टी एज, टीनेज. आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं आपके बॉडी में. यू विल बी लर्निंग इन योर 12th स्टैंडर्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इन दैट यू विल बी लर्निंग हाउ मेनी हार्मोन्स आर एक्टिवेटेड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इन द टीनेज कंडीशन.
So most of the hormones, I am not saying all the hormones, but most of the hormones are protein in nature. But enzymes are protein in nature. So all the metabolic reaction which is taking place in our body is all based on protein. Understood? So that means what? If at all, ये तो मैंने छोटे बच्चों की बात की जो डिपेंडेंट है, जो मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट है, इन्फेंट डिपेंडेंट है, और ये एज में तो बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज ग्रोथ हार्मोन डेवलप हो रहा है बॉडी में. अंडरस्टूड? बट आपके भी एज में आप एडवोकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं खा रहे जितना आपको डेली चाहिए, अभी भी अगर आप 2 महीना 3 महीना प्रोटीन छोड़ दो पूरी तरह से, देखो आपका स्किन कैसा हो जाएगा, आपका हेयर कैसा हो जाएगा, आपका ब्रेन डेवलपमेंट इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, आपका ब्रेन अच्छे से काम नहीं, यू विल ऑलवेज बी स्लगिश. स्लगिश मीन्स ऑलवेज बी, यू विल बी फीलिंग स्लीपी. अंडरस्टूड? समझ में आया? यस मैम. ये तो एक कंडीशन बताया गया क्वाड्रियोकर एंड मरासमस. मरासमस में नो एडिमा, जबकि क्वाड्रियोकर में एडिमा होता है. देयर इज अ एडिमा. ठीक है? एनी अदर डाउट? एनीबॉडी इज हैविंग एनी अदर डाउट? Anybody is having any other doubt, beta? You can ask me. There are 3 minutes more. You can just ask me any other doubt if you want. Any doubt if you want. Any doubt if you have in your mind, we can just. I will just try to solve the doubt. बहुत गलत जगह रखा है. Anyone, बच्चा? No one. Everyone know everything. Let me see the chat box. अच्छा, no doubt, no doubt. Okay, इतना सारा no doubt आया है. अभी मैंने chat box open किया है. What is Tushar telling? Tushar, any digestive organ not working properly? अच्छा, about indigestion you were talking about. Okay. Okay, if possible, again I will just try to share that one. But it is not showing, beta. Just let me check once again whether it is. I can show you that kwashiorkor and marasmus. I have that photo also. So let me check whether it is opening again. If not, I will surely show you in the next class. Or else you can go to the Google Baba and you can just search. Google Baba पे आप देख सकते हो kwashiorkor and marasmus के children. I don't know what has happened. बहुत slow चल रहा है ये आज. Now also the children are coming. Rashi. Yes, Vipul. Same to you, beta. Same to you, Vipul. So, next class में we will be starting with a new topic because this particular topic जितना आपके एग्जाम के लिए था वो मैंने आपको explain कर दिया है. तो in the next class we will be starting with a very new topic, maybe another topic. ठीक है? I want equal participation with all the children. आप सब भी equally participate करोगे ना तो फिर पढ़ने में भी मजा आएगा और सिखाने में भी मजा आएगा. Understood? ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोलते रहूं और आप चुपचाप सिर्फ सुन रहे हो. आप भी बोलोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि बाबा बच्चे एक्टिव हैं. ठीक है? यस, अपना टेक्स्ट बुक सामने रखो, आप पढ़ के रखो चाहिए तो, और फिर मुझे डाउट्स पूछो. ठीक है? I will be very happy if you ask me doubts because we also learn many things from your, है ना? So I think so. All of you are clear with everything. Just again let me check. Okay, thank you to all of you, bacha. Have a nice day, all of you. Thank you, Goodbye. Bye. Goodbye.